If you ask the Lord to come into your life, अगर आप प्रभु से अपने जीवन में आने को कहें, He'll gladly come. खुशी के साथ आएंगे And through your prayers, the Lord will change the whole family. और आपकी प्रार्थना के द्वारा से परमेश्वर पूरे परिवार को बदल देंगे। That's what we read in Acts 16:31. और यही हम प्रेरितों के काम 16 वचन 31 में पढ़ते हैं। Believe on the Lord Jesus Christ and you and your household shall be saved. प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। But if you have accepted the Lord परंतु अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है as your Savior, अपना उद्धारकर्ता के रूप and में, if you want the whole family to come to the Lord Jesus Christ, और आप चाहते हैं कि पूरा परिवार प्रभु यीशु के पास आ जाए, what you have to do? तो आपको क्या करना है? If you read Galatians chapter 6 verse 2, अगर आप गलाती 6 वचन 2 को पढ़ें, you have to pray for your family. आपको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। Spend time at the feet of God and cry unto Him. परमेश्वर के चरणों में आप समय बिताएं, उससे रुदन Lord, करें। change my husband. ओ प्रभु मेरे पति को बदल दें। He is addicted to so many things. वो कई चीजों का व्यसनी है। My child is addicted to drugs. मेरा बच्चा जो है नशे का आदी है। My daughter is going away from you. मेरी बेटी जो है आपसे दूर जा रही है। So every one of you should pray for each other. और आप में से हर एक को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। When I gave my life to the Lord, जब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया, all my family members were criticizing me. मेरे पूरे परिवार के लोग मेरी नुक्ताचीनी कर रहे थे। She and her husband are lunatics. ओ ये और उसका पति तो दोनों पागल हैं। All the time prayer, prayer, prayer and Bible reading, all the time meeting, meeting and so on. हमेशा ये लोग बस प्रार्थना करते रहते हैं, सभाएं करते रहते हैं और बस ऐसे ही। All of them will gather together and start criticizing me. वे सब एक साथ जमा होते और वो मेरी बुराई करने लगते। But do you know what I did? लेकिन मालूम मैंने क्या I किया? started praying for them. मैंने उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू किया। Lord, forgive them. ओ प्रभु ने माफ करें। They do not know which way to turn to come closer to thee. वे नहीं जानते कि किस तरह से वे आपके पास आ सकते हैं। Make me an example to each one of them. मुझे उनमें से हर एक के लिए एक आदर्श बनाए। Be with me, Lord. वो मेरे साथ हो प्रभु। Let me be tightly closer to you. ऐसा करें कि मैं आपके साथ हमेशा करीबी में रहूं। So I sought the Lord diligently along with my husband. तो मैंने अपने पति के साथ परमेश्वर को बहुत ही दीनता के साथ खोजा। Do you know what the Lord did? और मालूम प्रभु ने क्या किया? We were not very rich those days before these people, all our family members accepted the Lord. हम उन दिनों में बहुत ही ज्यादा धनी नहीं थे, इसके पहले कि हमारे जो परिवार के सदस्य थे उन्हें प्रभु को ग्रहण किया। We had so much need in our life. हमारे जीवन में कई प्रकार की आवश्यकताएं थीं। But after that, after we prayed to the Lord that we should be an example to our family members, लेकिन जब हम प्रार्थना करने लगे कि हम अपने परिवार के लोगों के लिए एक आदर्श बन सकें, the Lord started blessing our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन को आशीष देना शुरू किया। He blessed my husband. उन्होंने मेरे पति को आशीष दी। And he was promoted and he was having promotion after promotion and he became high authority in his bank. और उन्हें एक के बाद एक पदोन्नतियां मिलती गईं और अपने बैंक में उन्हें एक उच्च पद मिल गया। He became a great officer in the State Bank of India. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वे एक बड़े उच्च अधिकारी बन गए। Through the society of the State Bank of India, God blessed us with a beautiful home. और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सोसाइटी के द्वारा से परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही सुंदर घर से आशीषित किया। Then he raised us to great heights in so many ways. और तब उसके बाद उसने कई तरीकों से हमें ऊंचे उठाया। All my family members were watching that. मेरे हर एक परिवार के सदस्य इन सब को देख रहे थे। Then they said, तब उन्होंने कहा, surely the Lord is with them. निश्चय ही परमेश्वर उनके साथ है। Because they sought him diligently, God has blessed them abundantly like this. क्योंकि उन्होंने बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर को खोजा है, इसलिए परमेश्वर ने इतनी बहुतायत से उन्हें आशीषें दी हैं। All the people who rejected Jesus, saying so many things, came to Jesus one after the other. और जितने लोग यीशु मसीह को कई चीजें कहते हुए उन्हें छोड़ दिए थे, वो एक एक करके प्रभु यीशु के पास वापस आने लगे। Most of them received the Holy Spirit. और उनमें से अधिकांश ने पवित्र आत्मा को प्राप्त And किया। family after families, they started doing Lord's work in a small way. और एक के बाद एक परिवार के रूप में वे परमेश्वर की सेवा छोटे छोटे रूप से करने लगे। Likewise, my brother, my sister,
वैसे ही मेरे भाई और बहनों, first of all, you come to the Lord. सबसे पहले आप प्रभु के पास You आएं। seek Him diligently. आप उसको बड़े ही लगन से खोजें, Accept Him as your Lord and Savior. उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकारें, And then receive the Holy Spirit. और उसके बाद पवित्र आत्मा को पाएं। We read about a man called Cornelius in the book of Acts. हम प्रेरितों के नाम की किताब में कुरनेलियुस नाम के एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, We read about him in the 10th chapter of Acts. और हम प्रेरित 10 में उसके बारे में पढ़ते हैं। He was following the Lord so closely. वो प्रभु के बहुत ही करीबी में चलता था, And the Lord said, let me fill this man with the Holy Spirit. और प्रभु ने कहा कि मैं इसको पवित्र आत्मा से भरूंगा। He sent his servant Peter. और उसने अपने नौकरों को पतरस के पास भेजा। When he saw Peter, this man collected the whole family, friends and family members together. और जब उसने पतरस को अपने यहाँ पाया तो उसने अपने सारे रिश्तेदारों को, लोगों को और औरों को जमा कर लिया, Peter started preaching. और पतरस प्रचार करने लगा। Even while he was preaching, और जब वो प्रचार कर ही रहा the था, Lord's Holy Spirit came down and filled every one of them. परमेश्वर की आत्मा वहां उतर आई और उसने हर एक को वहां पर भर दिया। This is what is going to happen in your family. आपके परिवार में भी यही होने जा रहा है। Then, when the Holy Spirit comes and fills your family, और जब पवित्र आत्मा आकर के आपके परिवार को भरता what है will happen? तो क्या होगा? John 16:13. तो यूहन्ना 16:13 के अनुसार The Holy Spirit will lead you in the truthful way. पवित्र आत्मा आपको सत्य के मार्ग में अगुवाई करेगा। He'll teach you all the truth in the Bible and He will lead you accordingly. और वो बाइबल के हर एक सत्य में आपकी अगुवाई करेगा। That is what is happening right now in our family. और यही आज हमारे परिवार में हो रहा है। God is teaching every one of us through the Holy Spirit the truth from the Bible. पवित्र आत्मा हमें से हर एक को बाइबल से अपने सत्यों को सिखा रहा है और उसमें अगुवाई कर रहा है। And He is also using our family to tell others about the truth which we know in the Bible. और हमारे परिवार को वो औरों को सत्य को जिसको हमने प्राप्त किया है बताने में हमारे इस्तेमाल कर रहा है। People hear the truth. लोग उन सत्य को सुनते हैं They are transformed. और वे बदल जाते हैं। The same way. उसी तरह Do the same thing in your life too. आप भी अपने जीवन में वही करें। When you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा पाएंगे, it's not only the power of the Holy Spirit, या केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं, but also the truth you will be able to know through the Holy Spirit. लेकिन आप उस सत्य को भी पवित्र आत्मा के द्वारा से जान पाएंगे। And according to Philippians chapter 2 verse 2, और जैसा फिलिप्पी 2 और 2 में है, the whole home will be united together with one accord. आपका पूरा परिवार एक मन के साथ इकट्ठा हो जाएगा। So my brothers, my sisters, इसलिए मेरे भाई और बहनों, receive God in your life. परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकारें, And He will dwell you at all times in your life, in your heart, and whatever you do, the Lord will go before you. तो परमेश्वर जो है आपके जीवन में, आपके हृदय में हमेशा के लिए आ जाएगा और जो भी आप करेंगे उसमें वो आपकी अगुवाई करेगा। And when you receive the Holy Spirit, He will transform your lives. और जब आप पवित्र आत्मा पाएंगे वो आपके जीवन को बदल देगा। He'll be like Jesus. और आप जो यीशु की तरह हो जाएंगे। People will say that something special is in his life or in her life. और लोग कहेंगे कि इस स्त्री या पुरुष के जीवन में कुछ तो खास है। Right now, we are going to pray that we should receive all these blessings. और अभी हम प्रार्थना करेंगे कि हम में से हर एक इन सारी आशीषों को प्राप्त करें। Then your family life will be an example before everybody. You will have a Christ-centered family life. और तब आपका जो पारिवारिक जीवन है औरों के लिए एक आदर्श बन जाएगा और वह एक ख्रिस्ट केंद्रित परिवार हो जाएगा।